मैं आपको बताता हूँ कैसे जब हम मोती नगर में थे केवल 200 लोग थे. When we were in Moti Nagar, barely 200 people. और एक फॉरेनर कपल आए मिलने के लिए. And a foreigner couple came to meet और us. चर्च बढ़ रहा था, उसमें केवल 200 लोग थे. The church was growing, just 200 people. और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं. And they said, we want to sponsor you. तो हम आपको एक घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, We'll give आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में डालेंगे We'll give और you a आपको एक house. बहुत अच्छी सैलरी देंगे. We'll give you a house, a car, put your kids in a good school and give a very good salary to क्योंकि you. हम देख रहे हैं कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छा कर रही है. Because we see your ministry is doing good. आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ. You join our organization. तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा. I said, I'll pray and tell you. जैसे ही मैं रात को लेटा, The moment I laid down at night, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला, अगर तूने सेवकाई इनको दी तो ये पूरी सेवकाई पे कंट्रोल कर देंगे, ये मेरी इच्छा नहीं है. the moment I laid down, the Holy Spirit said, if you allow them, they will take control of the entire ministry and that is not my will. जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है. The anointing that is within you will teach you all things. क्या बहुत देखिए हमारा हृदय, हम क्यों एक कलीसिया में हम चंगाई करते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु वे बोझ डालता है जो लोग आज सताए गए हैं बीमारियों में. परमेश्वर का हृदय. मगर अगर एक व्यक्ति बाहर चमत्कार करे और खुद शैतान की तरह कमरे के पीछे रहे तो फिर उसे क्या लाभ हुआ? अंत में क्या सेवा थी वो? क्योंकि प्रभु तो वो देख रहा है जो आप कमरे के पीछे हो. Yes, we pray for people to be healed because that's God's burden, His desire to see His people healed. But what is the use if a man walks in healing outside to people but lives like the devil behind closed doors? So लक्ष्य केवल चिन्ह और चमत्कार करना नहीं है, लक्ष्य यीशु मसीह के समान स्वरूप में बढ़ना है. The aim is not just to walk in signs and wonders and miracles, but the aim is to grow like Jesus in everything, in stature. Amen. जब आप उसके साथ संगति कर, आप प्रभु को पूछते हैं, प्रभु तुझे क्या पसंद है? मेरी सेवकाई में तुझे जो नहीं पसंद वो हटा दे. When you fellowship with Him, you ask Him, Lord, what do you like? Whatever you don't like in my ministry, take it away. मैं आपको उसकी उपस्थिति में कह रहा हूँ. मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जिस दिन ये सेवकाई करप्ट हो रही हो, ये पूरा चर्च बंद कर देना. I've said this to God and I'm saying this in God's presence. The day this ministry is corrupted, shut this church. क्योंकि अंत में क्या लाभ अगर मैं प्रभु के पास जाऊं, अंत में उसके सामने खड़ा हूं, वो कहेगा तूने करप्टेड चर्च को, तू पास्टर था. What will be the fruit of standing before Jesus when He will say, you led a corrupted ministry? Hear this. सुनिए, आज कितने सारे लोग हैं पता है, उनको करप्ट किसने करा है? पुलपिट चाहते हो, ये लाइट चाहते हैं, लाइट आए. so many people have been corrupted today because they lust for the pulpit, they want the light. और मैंने इतने सालों में देखा है, जो पुलपिट चाहता है खुदा उसे कभी पुलपिट नहीं देता. And all these years I have always seen all those who lusted after the pulpit, God never gave it to और them. जो भागता है खुदा कहता है तू है, क्योंकि तुझे पुलपिट नहीं चाहिए इसलिए मैं तुझे दूंगा. And everyone who was running away from the pulpit, God said, you are the one, because you don't want it, I'll give it to you. Amen. जहां हो वहां पुलपिट बनाओ, जहां नौकरी करते हो वहां पुलपिट बनाओ, जो कॉलेज में हो वहां पुलपिट बनाओ. आपको लाइट और पुलपिट की जरूरत नहीं. अगर मन में यीशु का प्रेम है तो जहां जाओगे वहां उसकी गवाही दोगे. Wherever you are, make a pulpit there. If you are working, make a pulpit there. At church, when you are at work, wherever you go, make a pulpit there. You don't need lights and pulpit to preach about Him. Hear this. If the light that is shining upon you is greater than the light that is shining in you, the light shining upon you will destroy you. वो लाइट जो आपके बाहर से ऊपर चमक रही है, उससे अगर तेज है जो लाइट आपके अंदर चमक रही है, तो जो बाहर की लाइट है वो आपको नाश कर देगी. कितने प्रीचर्स हैं जो अभिषेक उनके ऊपर था उसने उनको नाश कर दिया. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, तो उनके मन ने क्या बोला? अरे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है प्रभु के साथ. क्योंकि वो सब हो रहा था, भले ही अंदर वो गलत जीवन जी रहे थे, मगर अंदर से उन्हें कभी कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री की सक्सेस किससे देख रहे थे? जो काम हो रहे थे. So many preachers got destroyed because when they were ministering, mighty works were happening. So they assumed that my relationship with God is great because these things are happening, and slowly they drifted away and got destroyed. No. आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? मैं लंबा नहीं करूंगा आज. मेरी घड़ी अलग ही है, 7:15 दिखा रही है. एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए. आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे
बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई. A man of God, when he died and was standing before the Lord, the first question God asked him, Jesus asked him, was not, "My son, how great did you build the ministry?" कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी. How many crowds attended your ministry? कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई. What big size buildings did you ये make? नहीं पूछा. Jesus आप did जानते हैं not क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? "Did you learn to love like me on the earth?" ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे. This is our greatest training, that will we learn to love like Jesus on the earth? जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है. Those who speak evil of you, those who are against you, do you come to your knees and bless them because the Father is looking? सो लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है. क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है. मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है. यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है. Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है. I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन. The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से. At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा. The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ्य से भरता है. And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा. When the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit. Flows in the gift of the अब Spirit. सामर्थ में बढ़ना भी बहुत जरूरी है. अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं. Now it is so important to also grow in the power of God, because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है. The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का गवाह बनाता है. When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो. The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो. But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए. And we need both. हमें दोनों चाहिए. We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा, तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना. I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है. He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है. Amen. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे. Because so many people are running after. क्योंकि हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी. हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है. Everybody is running after power on the outside so the ministry can grow, but are they desiring to grow in the anointing within? Because that anointing will make you like Christ.
मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे, मुझे आत्मा के। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था। I remember the first time I heard the voice of the Lord so clearly. Every morning at 4 a.m. I would wake up and I would say, Lord, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. और कोई बुरा नहीं है मांगना, And it's not bad to ask. मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी है। But why do you need those gifts is important. There are some ministers whom Holy Spirit uses, कुछ सेवक हैं जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, and there are some ministers who use the Holy Spirit, और कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, and both are very different. और दोनों बहुत अलग हैं. So मैं बोला था, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे। और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए। मैंने उनको देखा नहीं, मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे, और उन्होंने मुझसे कहा, तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And I felt the Lord Jesus walk into my room and he said, you who ask me for 9 gifts every day, am I not better than those 9 gifts? और फिर वो मुझे उन सब, वो कहने लगा, क्यों वो मेरी आवाज को सुनेंगे और क्यों वो मेरे हृदय को जानेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना है, क्योंकि सामर्थ प्रेम बिना पतन का कारण है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आज तक याद है, प्रभु ने मुझे कहा, सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है। The Lord spoke to me exact words. He said, power without love is the reason for fall. शैतान भी पावर चाहता है, Devil also wanted power. मगर उस पावर को जो पवित्र रखता है वो परमेश्वर के लिए प्रेम है। The thing that keeps that power pure for God is the love for God. Amen. हमारा असली धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Our true wealth is the Lord Jesus himself. जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, केवल सामर्थ मांगने के लिए नहीं, मगर पिता को जानने के लिए, वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा और प्रभु अपने आप को और प्रकट करेगा आपको। As you fellowship with him, not to ask for power but to fellowship, that anointing will keep on growing within you and the Lord will manifest himself to you more and more. Hallelujah. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Amen. So ऊपर लाइट तो बढ़ेगी, The light upon you will मगर increase. अंदर की लाइट बढ़ती जाए आखिरी सांस तक। But let the light within increase till our last breath. Walk in clean conscience before God. परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक में जिए. यानी मैं आपको, अगर कभी गलती हो, If you ever make a mistake, quickly go into his presence and come under the blood. जल्दी से उसकी उपस्थिति में जाएं और लहू के नीचे आ जाएं. Be quick to repent. जल्दी से माफी मांग ले, मन फिरा लें. Be quick to go to the Father and say sorry. जल्दी से पिता के सामने जाके माफी मांग लें. It will keep your conscience clean. ऐसा करने से आपका विवेक साफ आप रहेगा. जानते हैं, ऐसे लोग रहे हैं जो हमारे चर्च में थे, जिन्होंने, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत यहाँ पे चोरियां करी, गलत गलत काम करे, छोड़ के चले गए, और प्रभु ने मुझे कहा उनको तू सॉरी बोल। मैंने कहा प्रभु, उन्होंने, they have done it, प्रभु ने कहा तू सॉरी बोल। There were people who stole from the church, left the church, did a lot of things, and the Lord told me, you apologize to them. I said, Lord, they've done this. Lord said, you apologize. आज कितने लोग हैं, अगर सॉरी उनको बोलना पड़े, उनकी जान, सॉरी, गर्दन कटा देंगे और सॉरी नहीं बोलेंगे। So many people are not willing to apologize. They are ready to die, but they will not apologize. मैंने कहा प्रभु, मैं अपने सारे अहम को साइड रखता हूँ। मैंने उस भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे माफ करना। I said, Lord, I keep all my ego and pride aside. I messaged that brother and said, sorry. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको मसीह की तरह बनाता है। The anointing within you will make you like Christ. Amen. और जस्ट इन केस आप मिस कर दो उसकी आवाज को सुनना,
तो In case- प्रभु ने एक दूसरी पवित्र आत्मा दी है आपको. In case you miss hearing his voice, God has given you a second Holy Spirit. That is your wife. आपकी पत्नी. मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अंदर से आवाज को मिस कर दो तो प्रभु आपकी वाइफ के द्वारा बोलता रहे जब तक आप सुनो ना. I pray if you miss the voice within, that the Lord will keep speaking through your wife until you hear. इसीलिए पत्नी को हेल्पर कहा गया है, जो पवित्र आत्मा को कहा गया है. That's why wives are called the helper and the Holy Spirit is called the helper. Amen. इसीलिए पतियों, So husbands, it's good to hear your wife. अपनी पत्नी को सुनना, उसकी सुनना अच्छा है. Godly wife. जो प्रभु का भय मानने वाली पत्नी हो. वरना एक आदम ने भी सुनी थी. Otherwise, Adam also heard his wife. Amen. अंदर से हमें सेंसिटिव रहना है. Stay sensitive from within. अगर घमंड लगे, कभी घमंड आ रहा है, go If you- low before God. If you feel ego and pride rising up within, go low. परमेश्वर के सामने नीचे झुक जाओ. एक घमंडी को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता. A proud man will receive nothing from अगर God. फेवरलेस जीना है अपने जीवन में, स्ट्रगल में जीना है, तो घमंड में चलो. कभी भी अनुग्रह एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा. If you want to live a life without favor and if you want to struggle, then live in pride, not even one drop of grace will be found in your और life. अगर ऊंचा उड़ना है तो But if you नम्र हो जाओ. जो नम्र है खुदा उनको उठाता है. But if you want to soar high, be humble because the Lord lifts up the humble. Amen. याद है मैंने आपको बताया था कैटापुल्टिंग ग्रेस. कैटापुल्टिंग ग्रेस आपने देखा एक साल में क्या हो गया. Have you seen what has happened in one प्रभु ने year? क्या कहा था. कैटापुल्टिंग, प्रभु ने कहा था ऐसे उठा के ऐसे फेंकने वाला हूं मैं. The Lord had said, I will pick you up and I will throw you high. May you be catapulted towards your destiny in the name of Jesus. आप अपने डेस्टिनी की ओर, अपनी मंजिल की ओर उठाकर ऊंचा फेंके जाएं यीशु के नाम में. जहां दूसरों को पहुंचने में 10 साल 20 साल लगते हैं, आप महीनों में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में. Where it takes 10 years, 20 years for others to reach, you are reaching there within months in Jesus' name. वो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ में आ जा रही है यीशु के नाम में. That supernatural speed is coming into your life today in Jesus' name. हालेलुया. जहां आपका टैलेंट, जहां आपका नौकरी, जहां आपके कनेक्शन नहीं ले जा सकते, वहां खुदा का आत्मा आपको लेकर जा रहा है यीशु के नाम में. Where your talent, your job, your connections could not take you, the Holy Spirit is taking you there in Jesus' name. From today, the only direction you are going is up, up and up in Jesus' name. आज इससे आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हो और वो है ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. You are stepping into next level in Jesus' name. आप अगले स्तर में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Amen. Okay. मैं जल्दी से आपको ये बता दूं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. आप सबके पास ऑयल है आपके हाथ में. All of you have oil. अगर नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर दें. वॉलंटियर्स आपके पास If ले someone आएंगे. doesn't have- अगर नहीं है आपके पास तो हाथ खड़ा कर दें. If you don't have the oil, lift up your hand. The Volunteers, will can come you to you. quickly give them the anointing oil? Hallelujah. कितने लोग टर्न अराउंड को देखना शुरू कर दिया है जून में. How many मैं people बता रहा हूं जून बेस्ट महीना होने वाला है. I'm telling you, June is going to be the best month so far. June is the month of supernatural turnaround in Jesus' name. June supernatural turnaround का महीना है यीशु के नाम में. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. May you come under
that oil today in Jesus' name. आज आप उस तेल के अधीन हो जाएं यीशु के नाम में. किसी ने मुझे मैसेज किया था, क्या हम घर से भी तेल ला सकते हैं? हाँ, आप घर से भी तेल ला सकते हो. Somebody asked me, can we bring oil from home? Yes, you can. ये तेल हम यहाँ बनाते नहीं हैं. We don't manufacture this oil. साधारण तेल जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पे उतरता है तो असाधारण बन जाता है. Ordinary oil, when the anointing of the Holy Spirit comes into it, it becomes extraordinary. ओके, एक काम करिए, बैठ जाइए अभी सारे लोग. जिनके पास तेल नहीं है केवल वो खड़े रहिए, क्योंकि वॉलंटियर्स फिर इजीली आप तक तेल दे सकते हैं. Anyone who doesn't have the oil, let them stand. ओके, जिनके पास तेल नहीं है, वॉलंटियर्स आप जल्दी से उन्हें तेल दे दें. Hallelujah. And not only people are anointed according to Bible, और केवल लोग ही अभिषेक नहीं बाइबल के अनुसार, even things can be anointed. वस्तुओं में भी अभिषेक जाता है. Go and anoint your businesses in Jesus' name. जाओ और अपने बिजनेस को अनॉइंट करो. Anoint your homes in Jesus' name. अपने घरों को अभिषेक करो यीशु के नाम में. And no enemy. When the anointing oil comes upon you, you become a touch me not entity for Satan. जब वो अभिषेक का तेल आपके ऊपर आता है, आप ऐसे बन जाते हैं जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है. Hallelujah. Okay, jaldi se volunteers, if you can give the oil to people. Praise God. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. What a privilege that we are in Christ Jesus. क्या सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं. Amen. तो जो कितनी गर्मी लग रही है अभी आपको एसी में, Imagine तो हमें if you- कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक बहुत ज्यादा गर्मी से बचा लिया है. if you're नहीं feeling समझे? so- जो नरक में जल रहे हैं ना, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है. God has saved us from hell. Come on. Amen. Hallelujah. Amen. बाइबल कहती है वहां की आग कभी बुझती नहीं, Bible says the fire thereof never quenches. मगर आप वहां जाने वाले नहीं हो, But you are not going there क्योंकि आप मसीह में हो. because you are in Christ. तो कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए. We should be so thankful. Hallelujah. Hallelujah. अब आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand. मैं एक बात आपको ध्यान से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा. अगर आप इसको साधारण समझोगे, इस मौके को, इस समय को, तो ये साधारण है. If you take this time, this moment lightly, then it will be light or ordinary. आपके साथ वही होगा जैसा आपका विश्वास है. You will have as you believe. आपने देखा यहाँ पे कितनी गवाहियां आती हैं, जैसे ही तेल लोगों के शरीर को छूता है, शैतान की सामर्थ नाश हो जाती है यीशु के नाम में. We receive so many testimonies. The moment this oil touches people, every power of the devil is destroyed. अगर आप यहाँ पर आए हो और आपका कोई रिश्तेदार भी बीमार है, अभी जब हम घोषणा करेंगे इस बात को समझो कि ये साधारण तेल आप असाधारण होकर लेके जा रहे हो इसको. If you have come here and one of your relatives is sick, then know that this ordinary oil, you're taking it back as extraordinary. आज कैंसर्स नाश होंगे यीशु के नाम. Today, cancers will be destroyed in Jesus' name. आज ट्यूमर्स घुल जाएंगे यीशु के नाम में. Tumors will dissolve in Jesus' name. आज टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाएंगी यीशु के नाम में. Crooked bones will be made straight in Jesus' name. आज अंधी आंखें देखेंगी यीशु के नाम में. Today, blind eyes will see in आज Jesus' name. बहरे कान सुनेंगे यीशु के नाम में. Today, deaf ears will hear in Jesus' name. फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने एक दर्शन देखा आज की सेवा के लिए. Then I'll tell you the vision that I saw for today's service. आखिरी में जब हम प्रार्थना करेंगे, बहुत पावरफुल. It's very powerful. ओके, आप जो तेल आपके हाथ में, लिफ्ट इट अप, और हम साथ में घोषणा करेंगे. We will declare together. ओके, हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे. और इस बात को समझना कि जैसे हम घोषणा कर रहे हैं आज, पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ इस तेल में समा रहा है. The power of the Holy Spirit will flow into this oil as we make these declarations today.
This oil is no longer ordinary. It is no longer ordinary. I set it apart by faith in the name of Jesus. It is now consecrated, anointed, and wholly empowered by the Spirit of God. By the Spirit of God. As it touches, it transforms. It transforms. As it is applied, it heals. As it is released, it breaks every yoke in Jesus' name. It breaks every yoke in Jesus' name. यह तेल अब सामान्य नहीं है. मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं. यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है. जहां ये छुएगा वहां रूपांतरण होगा. जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी. और जहां बहाया जाएगा वहां हर एक जुआ यीशु के नाम में टूट जाएगा. This oil is a point of contact for healing power. As it touches the sick, the same anointing flows through them. I declare, sickness must leave, pain must go, and full restoration must manifest in Jesus' name. यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क स्थान है. जैसे ही यह रोगी को छुएगा वैसे ही अभिषेक जो यीशु में था उसमें प्रवाहित होगा. मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी. यीशु के नाम में. By this anointing oil, I proclaim liberty to the captives. Every demonic oppression breaks at the touch of this oil. Chains are loosed, minds are restored, and peace returns. The yoke is destroyed because of the anointing. इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं. हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है. जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है. यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के नाम में. This oil marks divine protection. As it is applied, the Lord surrounds us like a shield. No plague, pestilence, or evil can cross the line of the anointing. I plead the blood of Jesus over every person, home, and possession anointed with this oil. यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मोहर है. जैसे ही ये लगाया जाता है प्रभु एक ढाल बनकर मेरी रक्षा करते हैं. कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती. मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त है. Hallelujah. Now open the cap, lift it up, and we are going to pray in the Spirit for some time. इसको खोल लें
हम कुछ समय साथ में आत्मा में प्रार्थना करें. Come on, आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे. Mazakati brahade, Yamala aze broga dele brege, Ambage gosi managale heriaba, Zobiga bahari alabaze kanama, Ragabade ni alabase ko mama magaya baga, Le koriga danamaze karaba. Eliba makabara kakaka se tokonomo ezibalaha meki goli kamaragade zobra baba bazendelege regila baba baba bare. Oh, hallelujah. This is your hour of encounter with power. ये आपका क्षण है सामर्थ्य के साथ साक्षात्कार करने का. Robraga dele brege dene me zakatana. Hallelujah. Hallelujah. Now, take some oil on your hand थोड़ा तेल अपने हाथ पर ले, and anoint yourself. अपने आप को अभिषेक करें. Anoint yourself. अपने आप को अभिषेक करें. Hallelujah. You are marked. आप पर छाप लगाई है. I declare that you are a touch me not entity for Satan. मैं घोषणा करता हूँ आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है. Every affliction in your household is destroyed now in Jesus' name. आपके घराने के विरुद्ध हर एक सताव नाश किया जाता है यीशु के नाम में. Every organ in your body that is malfunctioning is restored now in Jesus' name. आपके शरीर का हर एक अंग जो ठीक से काम नहीं कर रहा था वो वापस चंगा किया जाता है यीशु के नाम में. Hallelujah. Everything afflicting you is afflicted from now on in Jesus' हर name. एक चीज जो आपको सताती थी आज तक अब वो सताई जाती है यीशु के नाम में. Every tormenting spirit is now tormented by the power and the fire of the Holy Ghost. हर एक सताने वाली आत्मा आज पवित्र आत्मा की आग में सताई जाती है यीशु के नाम में. Hallelujah. Now hear this. As I was praying for this meeting last night, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस सभा के बारे में पिछली रात, I saw two things. मैंने दो चीजें देखी. I saw a great anointing fall on people. एक महान अभिषेक लोगों पर उतरते देखा. And the intensity of the power was so great और उस सामर्थ्य वो बहुत ही महान सामर्थ्य that थी. many people were thrown off their chairs. बहुत से लोग अपनी कुर्सी से उड़ते हुए गए. आज Pentecost Sunday है. Today is Pentecost Sunday. And in the timeline of God is not linear, it is spiral, it's circular. और परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो सीधी सीधी रेखा नहीं है लेकिन वो घूमने वाली रेखा की तरह है. That means you can experience Pentecost today in Jesus' name. इसका मतलब आप पेंटिकोस्ट का अनुभव आज पा सकते हैं यीशु के और मैं नाम आपको में. बता रहा हूँ ये अब हर किसी के लिए नहीं है. ये नाम के लिए. केवल भूखे लोगों के ऊपर परमेश्वर एक महान अभिषेक को डालने जा रहा है. This is not for everyone. God is going to pour out a mighty anointing upon those who are hungry. And then I saw in the pastors section, I saw a great anointing come upon pastors. और मैंने पास्टर्स के सेक्शन को देखा. मैंने एक महान अभिषेक को पास्टर्स पर आते हुए देखा. An anointing that brings church growth. वो अभिषेक जो कलीसिया की बढ़ोतरी लाता है. An anointing that takes over territories. वो अभिषेक जो क्षेत्रों पर कब्जा करता है. Last to last night God showed me. पिछली से पिछली रात परमेश्वर ने दिखाया. Are you ready? आप तैयार हैं? If you are yielded vessel, अगर आप समर्पित बर्तन हो, if you are sensitive to the moving of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के चलन के लिए संवेदनशील अगर this आप हो, time is for you. तो ये समय आप ही के लिए है. Make sure that you are not holding kids at this moment. इस समय आप बच्चों को पकड़े हुए ना हो, ध्यान देना. And if you're holding kids, you should sit down. अगर बच्चों को पकड़ा हुआ है तो आप नीचे बैठ जाएं. Because the gushing power of the Holy Spirit is going to come. क्योंकि पवित्र आत्मा की वो उमड़ती हुई सामर्थ्य आएगी. In the overflow section, in the chapel area, wherever you are, ओवरफ्लो में, चैपल में, जहां पर भी आप लोग हैं, a mighty anointing is going to come upon His people. महान अभिषेक उतर आएगा.
Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम as you में, have shown me, Lord, as you have shown me, जैसा आपने मुझे दिखाया प्रभु, I release the fire. मैं अग्नि को खोल देता हूँ यीशु के Fire! नाम में। Fire! अग्नि Receive it now. ले लो इस समय। Fire comes upon you. आग आती है आपके Power ऊपर, comes upon you. सामर्थ्य आती है आपके ऊपर। Masakatala bragadala bragadala bra. Ragadala bragadala bragadala ba 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 ba. Fire. अग्नि, Holy Ghost fire. पवित्र आत्मा की आग, Holy Ghost fire. पवित्र आत्मा की आग। भर जाओ इस समय। Be filled एक महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। with a mighty anointing that's coming एक upon you. महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। A mighty anointing is coming upon Take it you. now. ले लो, Take it now. ले लो, Be filled. भर जाओ, Be filled. भर जाओ। Fire. अग्नि, Fire. अग्नि, Fire. अग्नि, Fire. अग्नि। Mazabrahadala bragadala bragadala ba. Oh, Zemana handanama. Bragadala bragadala bragada. You are turning into a different person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो इस समय। You are turning into another person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो अभी। The anointing is transforming you into another person. अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में बदल रहा है अभी। The anointing is turning you into another person. वो अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति बना रहा है। Fire! अग्नि, From the crown of your head सर से लेकर to the soles of your feet. पांव के तलुओं तक The power of God is rushing in your body. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में दौड़ रही है। Take it. ले लो, Take it. ले लो, Take it. ले लो। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Oh, ha 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 ha, sabraga. La kabaragadana madagadala. La bragadala bragadala. Every devil that molested you is running in terror. हर एक वो दुष्ट जिसने आपको सताया था वो भयभीत होके भाग रहा है। Every devil that molested you is running in terror. हर एक वो शैतान जिसने आपको सताया था डर के मारे भाग रहा है। Every mocking Goliath is brought down by the sword of the Lord. हर एक ठट्ठा उड़ाने वाला गोलायत परमेश्वर की आत्मा की तलवार के द्वारा मार गिराया जा रहा है आज। Every mocking Goliath is brought down in Jesus' name. हर एक ठट्ठा करने वाला गोलियत आज मार गिराया जा रहा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Come on, step into your new level in Jesus' name. अपने नए स्तर में प्रवेश कर लो यीशु के नाम में इस समय। Step into your new level in Jesus' name. अपने नए स्तर में प्रवेश कर लो अभी।